اللہ کے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے جب کوئی بھی وجود موجود نہ تھا تو صرف ایک اللہ تھا۔ اس اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کے قدرت کے کمالات تک اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف بیان کرے۔ تو اس اللہ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو تخلیق کر دیا۔ بس جیسے ہی وہ نور تخلیق ہوا تو وہ نور اپنے خالق کی خدائی کو جان کر اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور لاکھوں سال تک مسلسل اپنے خالق کی تعریف کرتا رہا۔ بس لاکھوں سال کے بعد اس نور کو بنانے والا پروردگار اس نور کے انداز میں اپنی تعریف سن کر اس نور سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے اس نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو بس ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 12 حجابوں کے وجود میں آنے کے بعد یہ نور ان 12 حجابوں میں بھی جا کر اپنے خالق کی پھر سے تعریف کرنے لگا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا تھا تو ان 12 حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب خیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت ہے۔ یہ نور پہلے حجاب قدرت میں 12,000 سال تک سبحان العلی الاعلی، دوسرے حجاب عظمت میں 11,000 سال تک سبحان عالم السر والخفی، اسی طرح تیسرے حجاب عزت میں 10,000 سال تک سبحان الملک المنان، حجاب خیبت میں 9,000 سال تک سبحان اللہ وبحمدہ، حجاب جبروت میں 8,000 سال تک سبحان کریم الاکرم، حجاب رحمت میں 7,000 سال تک سبحان رب العرش العظیم، حجاب نبوت میں 6,000 سال تک سبحان رب العزت اما یصفون، حجاب کبریا میں 5,000 سال تک سبحان العظیم الاعظم، حجاب منزلت میں 4,000 سال تک سبحان العلیم الکریم الکبیر، حجاب رفعت میں 3,000 سال تک سبحان ذی الملک والملکوت، حجاب سعادت میں 2,000 سال تک سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول، اور حجاب شفاعت میں یہ نور 1,000 سال تک سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی صدائیں بلند کر کے بس اپنے رب کی تعریف کرتا رہا۔ اسی طرح یہ نور ان 12 مختلف حجابوں میں ہزاروں سال تک مسلسل اپنے پروردگار کی تعریف کرتا رہا۔ بس پھر اس نور کو بنانے والا پروردگار ان 12 حجابوں میں بھی اس نور سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے دوبارہ پھر سے ایک اور حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح کرسی کے بعد لوح، اور لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر پروردگار کی طرف سے قلم پہ یہ حکم جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنے بڑی تعریفوں والے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو قلم یہ عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو عرض کرنے لگا کہ اے تمام تعریفوں والے میرے پروردگار، یہ اتنے عظیم مرتبے کا مالک کون ہے کہ جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو پھر جان لے اور اس کے مقام کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب کے جس نے سب سے پہلے تیرے رب کی عبادت کی، تیرے رب کا
का जिक्र किया, और जब तेरे रब की तारीफ बयान करने के लिए कोई मौजूद ना था तो इसने सबसे पहले तेरे रब की तारीफ की। आए कलम, तेरा परवरदिगार अपने हबीब से अपनी तारीफ सुनकर इस कदर मुतासिर है कि बस अब तेरे परवरदिगार का ये इरादा है कि अनकरीब वो बहुत से आलमीन को पैदा करेगा और उन तमाम आलमीन पे वो अपने हबीब को एक ऐसा मुकाम अता करेगा कि जो मुकाम तेरे परवरदिगार ने ना अपने हबीब से पहले किसी को अता किया होगा और ना ही वो अपने हबीब के बाद किसी को अता करेगा। बस इसी तरह अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर का तारुफ कलम से कराया और फिर कलम से तारुफ कराने के बाद अल्लाह के हुक्म से नाम मोहम्मद को कलम के जरिए लोह पे तहरीर किया गया और वो नाम 4000 आसमानी साल तक उस लोह पे नूर की तरह चमकता रहा। इसी तरह फिर लोह कलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के कुछ हिस्सों से एक आलम को पैदा करने का इरादा किया। तो बस अल्लाह ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म से अल्लाह के हबीब का नूर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के पहले हिस्से से अपने अर्श को पैदा किया, दूसरे हिस्से से आसमानों को पैदा किया, तीसरे हिस्से से चांद और जमीनों को पैदा किया, चौथे हिस्से से सूरज जैसे बड़े बड़े सितारों को वजूद अता किया। लेकिन इन 4 हिस्सों से इस सारे आलम को बनाने के बावजूद भी ये सब तारीक था, इसमें अंधेरा था। तो अल्लाह ने अंधेरे में डूबे हुए इस आलम को रोशन करना चाहा, इसे रोशनी से भरना चाहा। तो बस अपने हबीब के नूर के 5वें हिस्से से पहली मर्तबा सिर्फ रोशनी को पैदा किया और इसी तरह अल्लाह के हबीब के नूर के इन्हीं 5 हिस्सों से पहली मर्तबा एक आलम को वजूद में लाया गया। व्यूवर्स, यहाँ पर एक अहम खास और जरूरी सवाल हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखलूक के अव्वल होने के बारे में पैदा होता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर यह बात याद रहे कि हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफा मखलूक के अव्वल हैं। इस बात का जिक्र अल्लाह ने गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए पहले से ही कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह मरियम की आयत नंबर 93 में ये इरशाद फरमाता है कि आसमानों और जमीनों और इस कायनात में जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह का अब्द है। व्यूवर्स, अब्द अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है बंदा, यानी बंदगी करने वाला या फिर इबादत करने वाला। अगर मैं आपको इस आयत का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह बता रहा है कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की इबादत करता है। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 81 में ये फरमाता है, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, कि ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि मैं हूँ वो कि जिसने सबसे पहले अल्लाह के हाँ अल्लाह की इबादत की। इसी तरह कुरान में एक और जगह पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है कि जमीनों आसमान और कायनात में मौजूद एक एक जर्रा अल्लाह का मुसलमान है और अल्लाह की बारगाह में सरे तस्लीम हम किए हुए है। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल अनाम की आयत नंबर 163 में ये फरमाता है, ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि मैं हूँ वो पहला मुसलमान कि जिसने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सरे तस्लीम हम किया। व्यूअर्स, जब आप इन दोनों आयात को पढ़ेंगे तो इन आयात में मुसलमान और सरे तस्लीम हम, इन दोनों लफ्जों का मतलब जरूर याद रखिएगा और इन दोनों लफ्जों का मतलब एक ही है और वो मतलब ये है कि अपनी ख्वाहिश और अपने वजूद को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देना। अब जैसा कि मैं आपको कुरान से हजरत रसूल खुदा का मखलूक के अव्वल होने के बारे में बता चुका हूं, तो व्यूअर्स यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इस जमीन पे एक इंसानी वजूद की सूरत में मौजूद रहे, लेकिन हकीकत में आप एक नूर हैं और आप एक नूर हैं। इस बात का जिक्र तो अल्लाह ने बगैर गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए भी कुरान में 2 जगहों पर सूरह अल माइदा की आयत नंबर 15 और सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 46 में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया हुआ है। बस फिर जैसे ही अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के इन 5 हिस्सों से एक आलम को बनाकर मुकम्मल किया, तो इस आलम को बनाकर मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ने इस आलम में अपनी इबादत के लिए और अपने हबीब के नूर का तारुफ कराने के लिए एक मखलूक को पैदा किया और फिर इस मखलूक को पैदा करने के बाद अल्लाह ने इस मखलूक से अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया।
बस फिर इस पहले आलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने फिर से एक और दूसरे आलम को पैदा किया और इस दूसरे आलम में भी एक और दूसरी मखलूक को पैदा किया और फिर इस दूसरी मखलूक को भी पैदा करने के बाद इस मखलूक से भी अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया। और इसी तरह करते करते अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया और इन तमाम आलमीन में अल्लाह ने मखलूकाते हिंद, मखलूकाते बिन, मखलूकाते जिन, मखलूकाते निस्नास और फरिश्तों और करोबियों के अलावा भी लाखों मुख्तलिफ मखलूकात को अपनी इबादत के लिए और अपने हबीब के नूर का तारुफ कराने के लिए पैदा किया। व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे, आलम अरबी जुबान का लफ्ज है और आलम का मतलब है कायनात। और अगर मैं आपको कायनात का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जो कुछ भी मौजूद है ये सब का सब सिर्फ एक कायनात या फिर एक आलम कहलाता है। और जिस आलम में हम इंसान रहते हैं ये आखिरी आलम है और इस आलम से पहले अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया था। अब व्यूवर्स, यहाँ पर इन आलमीन से भी अहम खास और जरूरी सवाल ये पैदा होता है कि हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन आलमीन से क्या लेना देना। तो व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि कुरान में सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि ऐ मेरे हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। व्यूअर्स, अब मुझ बंदे फकीर को इस बात का इल्म नहीं है कि हकीकत में ये आलमीन कितने हैं या फिर इनकी तादाद कितनी है, लेकिन नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये फरमाते हैं कि इन आलमीन की तादाद 9,99,999 है। लेकिन वो लोग जो रिवायात पर यकीन नहीं रखते और इस सवाल का जवाब सिर्फ कुरान से हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए कुरान की 2 आयात में इस सवाल का जवाब कुछ यूं बयान फरमाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की पहली सूरह की दूसरी आयत में ये इरशाद फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो तमाम आलमीन का खुदा है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान की इन दोनों आयात के जरिए गौर फिक्र करने वाले लोगों को उनके इस सवाल का जवाब कुछ यूं बता रहा है कि ऐ लोगों, जान लो कि जहां जहां तक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं वहां वहां तक मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है।